નમસ્કાર. મનોજ જોશીના આપ સૌને નમસ્કાર. એક નયા સવેરા આ વિશેષ સિરીઝમાં આપ સૌનું હું સ્વાગત કરું છું. જુલાઈ 2019 એ સમય કે જ્યારે દેશની કરોડોની જનસંખ્યામાં જોરશોરથી અલગ અલગ પ્રકારની ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી અને ચર્ચા હતી જમ્મુ કાશ્મીર વિશે. કાશ્મીરમાં શું થવાનું હતું એ કોઈને નહોતી ખબર, પણ એક વાત તો નક્કી હતી કે કેન્દ્રમાં રહેલી મોદી સરકાર કંઈક ઐતિહાસિક કરવા જઈ રહી હતી. કારણ સ્પષ્ટ હતું. પાકિસ્તાન તરફથી ફેલાવાતો આતંકવાદ અને જમ્મુ કાશ્મીરનો વિકાસ, આ બંને વિપરીત બાબતો એક સાથે તો શક્ય હતી જ નહીં. મોદી સરકારે પણ કાશ્મીરીઓની સાથે દેશવાસીઓને વચન આપ્યું હતું કે ગમે તે થઈ જાય, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा. देशમાં એક તરફ સેના, સરકાર અને જનતામાં જોશ અને ઉત્સાહ હતો, તે જ સમયે પાકિસ્તાનમાં જોરદાર ખળભળાટ મચી ગયો હતો. સમય ઓક્ટોબર 1949. દેશને આઝાદી મળ્યાને હજુ થોડો જ સમય વીત્યો હતો. આ જ એ સમય હતો જ્યારે ભારતના મુકુટ સમા રાજ્ય જમ્મુ કાશ્મીર સાથે કલંક સમાન આર્ટિકલ 370ના ઉદ્ભવના સંજોગો સર્જાવા લાગ્યા. જમ્મુ કાશ્મીરમાં અસામાન્ય સંજોગો વચ્ચે એક કામચલાઉ જોગવાઈ કરવામાં આવી. આ કામચલાઉ જોગવાઈ જ હતી આર્ટિકલ 370. આર્ટિકલ 370થી જમ્મુ કાશ્મીરને એક વિશેષ દરજ્જો મળ્યો. જો કે આ કામચલાઉ જોગવાઈ સમય જતા જમ્મુ કાશ્મીર માટે જાણે કે કાયમી બની ગઈ. પાકિસ્તાનને એ જોગવાઈ જો કે ખૂબ કામની લાગી. સમય ઓક્ટોબર 1954. આર્ટિકલ 370થી પૂરતું નહોતું તો તેના થોડા સમય બાદ દેશના તાજ જમ્મુ કાશ્મીરને દેશથી અલગ પરિપ્રેક્ષ્યમાં રાખતો આર્ટિકલ 35A પણ દેશના સંવિધાનમાં ઉમેરાયો. પાકિસ્તાન સમર્થિત અલગાવવાદી નેતાઓ જાણતા હતા કે આર્ટિકલ 370 અને આર્ટિકલ 35A થકી જ તેમની રાજનીતિ ચાલશે. દેશના કેટલાક સ્વાર્થી રાજનેતા પણ આર્ટિકલ 370 જેવી કામચલાઉ જોગવાઈ હટે નહીં તેના હકમાં હતા. પણ તેના કારણે હક છીનવાયો હતો તો જમ્મુ કાશ્મીરની જનતાનો. કેટલાક રાજનેતા આ કલમ હટે તેના હકમાં તો હતા, પરંતુ તેના માટે લડત નહોતા આપતા, કેમ કે તેમને ડર હતો વોટ બેંક છીનવાઈ જવાનો. જો કે એ પછી દાયકાઓ પછી દેશને એક એવું નેતૃત્વ મળ્યું જેમણે આર્ટિકલ 370 અને આર્ટિકલ 35A હટાવવાનો નિર્ણય લીધો. એ હતી મોદી સરકાર. આર્ટિકલ 370ને નાબૂદ કરવું એ ભાજપના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં વર્ષો સુધી રહ્યું, પરંતુ તેના પર નક્કર કામગીરી થઈ જ્યારે દેશને વડાપ્રધાન તરીકે મળ્યા નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહપ્રધાન તરીકે મળ્યા અમિતભાઈ શાહ. જો કે આર્ટિકલ 370 અને આર્ટિકલ 35A હટાવવાની હિલચાલ હતી તે પૂર્વે પાકિસ્તાનમાં ભયાનક ખળભળાટ મચેલો હતો. કેવી રીતે પાકિસ્તાનમાં ઉહાપોહ મચી ગયો, પ્રસ્તુત છે તેનું એક નાટ્ય રૂપાંતરણ. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको एक साथ यहाँ पे बुलाया गया है तो सबको समझ आ गया होगा कि कोई खास वजह होगी। क्या बात है जी, ये राज बना कर क्यों रखते हो? जो है वो बता दो। मौलाना, ये मामला इमामत का नहीं है, गौर से सुनो सब।
हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी हुकूमत कुछ ऐसा करने जा रही है कि हमारे हाथों से कश्मीर निकल सकता है। और पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर का जाना हमारी मुहिम का तबाह होना है। लाहौल वाला कुवत, अल्लाह ही जाने ये नरेंद्र मोदी और उसका होम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में क्या करने वाला है। ये जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तब से कश्मीर में हमारा जीना नामुमकिन हो गया है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी। आप यहां कश्मीर में नेतागिरी करते रहे और हम आपको पूरी जानकारी ला के देते रहे। आप क्या कहेंगे? आपका तो ड्रग्स का आना जाना बंद हो गया होगा, क्यों? जनाब, क्या बताऊं, हिंदुस्तान ने तो समंदर पर जाल बिछा दिया है। ये गुजरात पुलिस और डिफेंस एजेंसी ने मछुआरों के बेश में कब्जा जमाया है। तो क्या हुआ? आप कोई और रास्ते से भी जा सकते हो। ड्रग्स अगर रुक गया तो हमें बड़ा घाटा हो सकता है। जनाब, नेवी वालों का इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत हो गया है। हम यहां से कोई भी कोड वर्ड यूज करते हैं वो पकड़ ही लेते हैं। जनाब, 4 गुना रुपया देने के बाद भी कोई भी ड्रग्स पेडलर हिंदुस्तान जाने के लिए रेडी नहीं है। जनाब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, वो बच्चों को ट्रेनिंग देने की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, लेकिन इनके कैंप से कोई हरकत होती ही नहीं। जितना चाहिए उतना रुपया इन लोगों को मिलता है, लेकिन इनके कैंप से एक भी बच्चा हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार ही नहीं। और अगर कोई जाता ही नहीं तो हमारा माल भी नहीं जाता। आपकी छापे हुए डुप्लीकेट नोट की तो बूम है मियाँ, और आप निशाना हम पर मत लगाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर नाक में दम कर रखा है। अरे जैस ने तो हिंदुस्तान की हुकूमत को हर बार झुकने पर मजबूर किया है। अरे अगर आपकी डुप्लीकेट नोट कोई हाथ में नहीं लेता तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप हमें कुछ कह नहीं सकते जनाब? लश्कर ए तोयबा ने हिंदुस्तान में कई हमले करके तारीख को जिंदा रखा है। 26/11 मुंबई को याद कीजिए, हमने हिंदुस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। और आप जनाब, आपके आर्मी कमांडर जो यहां पर मौजूद है, जरा इनसे पूछिए कि हमने जब जब इनसे मदद मांगी ये सिर्फ हमें दिलासा देने में ही कामयाब हुए हैं। पूछिए, हम जब बॉर्डर पर फायरिंग करने को कहते तो चुप क्यों रहते? क्यों इतनी फटी पड़ी है? अपनी जबान को रोक के रखें जनाब। तैयबा के चीफ हैं तो क्या कुछ भी कहेंगे? आप पाकिस्तान की आर्मी के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम वही हैं जो आपके लड़कों को बॉर्डर के पार भेजते हैं ताकि वो हिंदुस्तान में जाकर अपनी दहशतगर्दी फैला सके। आप जवाब दें, होता क्या है? जनाब, इंडियन आर्मी की फायरिंग सुनकर इनके ट्रेन किए हुए लड़के भाग खड़े होते हैं। अरे अब कहां पहले जैसे जाबाज लड़के मिलते हैं। तो होता क्या है बॉर्डर पर, ये तो कहिए। जनाब, अब वो दिन नहीं रहे जब हम सीज फायर का वायलेशन करते थे। आज हम एक मोटार दागते हैं तो हिंदुस्तानी फौज 10 मोटार दागती है। आज हम एक गोली फायर करते हैं तो हिंदुस्तानी 100 गोलियां फायर करते हैं। तो जंगल का रास्ता क्यों नहीं पकड़ते? जनाब, जंगल के रास्ते पर हिंदुस्तानी फौज हमारी चौकियों को निशाना बनाकर उड़ा देती है। और यही आज का चेहरा है बॉर्डर का जनाब। पाकिस्तानी आर्मी के सामने सवाल खड़ा करने से पहले थोड़ा आप भी सीख लीजिए जनाब, वरना लश्कर का तंबू भी उखड़ जाएगा। अरे जनाब, हमारे लड़के पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा जिगर वाले। अरे आप तो बॉर्डर पर बैठकर चौकी में बैठकर फायरिंग करते हैं, और हम हिंदुस्तान की बॉर्डर पर जाकर तो सामने उसके सीने के अंदर गोलियां उतारते हैं। एक बात गौर करने जैसी है कि हमारे लड़के हिंदुस्तान में जाते हैं, उस बात की उनको इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, वो बात सोच सोच कर मगज झूठा गया है। समझा नहीं।
होता क्या है बताओ। अरे जनाब, पहले 100 बच्चों को लेकर जाते थे, अब 10 बच्चों को भी बॉर्डर पार लेके जाना मुश्किल है। हिंदुस्तान को सब पता है, उनका नेटवर्क भी बहुत मजबूत हो गया है। अब पहले जैसा नहीं रहा जनाब हिंदुस्तान। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसी बुरी है? हम आप सबको वहां की पुख्ता जानकारियां लाकर देते हैं और आप सबका सिर्फ यही मानना है कि हिंदुस्तान का ब्यूरो नेटवर्क मजबूत होता जा रहा है। हम यहां पर एक संगीन मौजू पर बात करने को जमा हुए हैं। यूं एक दूसरे पर तोहमत लगाना छोड़ दो। आप पाकिस्तानी हुकूमत को आप सबसे बड़ी उम्मीद है। आप सबको मिलके हिंदुस्तान को रोकना होगा। वो कुछ करे उससे पहले हम सबको मिलके कुछ बड़ा करना होगा, वरना कश्मीर हमारे हाथ से जा सकता है। आप जनाब ये बताएं कि हिंदुस्तानी करने क्या जा रहे हैं? आप तो पॉलिटिक्स में हैं, आपको तो सब पता होगा ना। आप पॉलिटिकली क्यों कुछ नहीं करते? आप यूनाइटेड नेशंस में जाएं, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में मदद की गुहार क्यों नहीं लगाते हैं? आप हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? अब जनाब आप हमें मत समझाइए कि कहाँ क्या बात कर रखनी चाहिए। हम हर जगह पाकिस्तानी आवाम की ही बात रखने वाले हैं। अगर ये हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है ना, तो पूरी दुनिया में उसकी बोलबाला है। हिंदुस्तान इतना पावरफुल हो चुका है कि अमेरिका और चाइना की आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। अगर अल्लाह जानता है कि हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि ये हिंदुस्तान की नई सरकार जम्मू और कश्मीर से दफ़ा 370 और दफ़ा 35 से पूरी तरह मिटाने के फिराक में है। हाँ, यही अंदेशा है और हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना आज़ाद कश्मीर को अपना बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमें मुहिम छेड़नी होगी, कश्मीर में दहशत फैलानी होगी, आग लगानी होगी, वरना हमारे सारे ख्वाब मलिया मैट हो जाएंगे। न आऊज़ो बिल्ला। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत कश्मीर से स्पेशल स्टेट का दर्जा हटा देती है तो कश्मीर हमारे हाथों से फिसल जाएगा। ये कोई दावत वलीमा का हलवा है जो जी किया खा लिया? ये कभी हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। ये मेरी सफेद दाढ़ी के बालों का तजुर्बा है। जैश और लश्कर साथ में मिलकर काम करेंगे। हिंदुस्तान के जो भी मंसूबे होंगे ना, सब नाकामयाब कर देंगे। पाकिस्तान की आर्मी को हमें सपोर्ट करना होगा। हम भी पूरी ताकत लगाकर हिंदुस्तान में ड्रग्स उतार देंगे। हिंदुस्तान हुकूमत की नज़र कश्मीर पर होगी। उसी वक्त राजस्थान, पंजाब और गुजरात के रास्ते से पूरा जखीरा उतार देंगे। ये काम बड़ा मुश्किल है, बता दे रहा हूं। जनाब, इंडिया की करेंसी को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया से आए हुए नए नोट हम यहाँ पे नहीं छाप सकते, बड़ी मुश्किल आ रही है। आपको पूरी मदद मिलेगी, हौसला बनाए रखें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस ये तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी हुकूमत को हमें कामयाब नहीं होने देना है। इसके लिए आपको जो करना है कीजिए। आपको जितना रुपया चाहिए मिलेगा। पाकिस्तानी हुकूमत आपके साथ है। हम अमेरिका जाएंगे, चाइना जाएंगे, अरे पूरी दुनिया के सामने जाके बताएंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत तानाशाह है, वो कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म कर रही है। मगर इन सब बातों को सच करने के लिए आप सबको मिलके कश्मीर में आग लगानी होगी। जनाब, आपको जो कुछ भी करना है कीजिए,
मगर आजकल कश्मीर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब आवाम भी हमारी बात नहीं सुनती हमारी बात, ये आवाम। जनाब, वहां कश्मीर की आवाम में न जाने इन लोगों ने क्या भर दिया है। वहां हिंदुस्तान आर्मी स्कूल खोल रहे हैं। कश्मीर के नौजवान पत्थर फेंकने की बजाय कंप्यूटर सीख रहे हैं। वहां उन लोगों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। जनाब, उन कश्मीरी खातूनों को जिन्हें हम पांव की जूती की तरह रखते थे, वो अलग अलग तिजारत कर रही है। वो क्या कहते आत्मनिर्भर हो रही है। बेकरी चलाती है, सिलाई मशीन चलाती है, कोचिंग क्लासेस चलाती है, न जाने क्या क्या चलाती है। उन्हें हम दूसरे कामों में कैसे लगाए? जनाब, कश्मीर का पूरा नक्शा बदलने जा रहा है। अगर कश्मीर से दफा 370 और दफा 35 है हट गई तो कश्मीर की पूरी आवाम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हिमायत देने के लिए आगे रहेगी। हमें बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि हम इतने सालों से आप सबके साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों ने तो लड़ाई होने से पहले ही घुटने टेक दिए। हिंदुस्तानी हुकूमत के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हो आप सब। क्या ऐसे कश्मीर जीता जाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे हाथ में जो कश्मीर है वो भी निकल जाएगा। अब आप लोग कुछ भी करो, लेकिन कश्मीर में आग लगा दो। मर जाएंगे लेकिन कश्मीर लेके रहेंगे। कश्मीर लेके रहेंगे।